Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 6. We have already discussed lecture number 5. If any difficulty, you can ask. Now, dear students, we will discuss the effect of dielectric constant of the solvent on the rate of reaction. Now, rates of reactions in solution also depend on the dielectric constant of the medium in which the charged species are being reacted. A simple model for a reaction between two ions of charges Za into E and Zb into E in a medium of dielectric constant epsilon is shown in figure 2. The two ions form a complex of total charge Za plus Zb, and the complex decomposes into two ions. This is also called the double sphere model of the reaction rate, and the complex decomposes into two ions. A mathematical relation between the dielectric constant of the medium and the rate constant of reaction can be derived as given below. Now, dear students, rates of reaction also depend on the dielectric constant of the medium in which the charged species are being reacted. A simple model for a reaction between two ions of charges Za into E, Zb into E in a medium of dielectric constant epsilon is shown in figure 2. The two ions form a complex of total charge number Za plus Zb, and the complex decomposes into two ions. This is also called the double sphere activated complex model of the reaction rate. A mathematical relation between dielectric constant of the medium and rate constant of reaction can be derived as given below. We know that K2, that is the rate constant, is equal to Kb into T over H into e की power minus delta H star over RT. Here Kb is the Boltzmann constant, T is the temperature, H is a Planck constant, and delta H star is the enthalpy of the complex. Now, taking the log of the above equation, we get इस क्वेश्चन का अगर आप लॉग लें हमें जो मिलेगा कि log K2 that is equal to log of Kb into T over H minus delta F star over RT. और delta H star जो है that is converted into free energy of activation of the complex, that is delta F star. That is log K2 is equal to log of Kb into T over H minus delta F star over RT. और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि log K2
that is equal to log of Kb into T over H minus 1 over RT delta Fc star minus delta Fnc star। now हमारे पास क्वेश्चन थी कि log K2 that is equal to Kb into T over H into e की पावर माइनस डेल्टा H स्टार ओवर RT। इस क्वेश्चन का अगर आप लॉग लेते हैं बोथ साइड का, हमें जो इक्वेशन मिलती है कि log K2 that is equal to log of Kb into T over H minus डेल्टा F स्टार ओवर RT। या हम लिख सकते हैं कि log of K2 that is equal to log of Kb into T over H minus 1 over RT delta F star C minus delta Nc star। This is equation number 1। इसमें डेल्टा Fc स्टार एंड डेल्टा Nc स्टार जो है डेल्टा F Nc star, this represent the Coulombic and non-Coulombic activation energies respectively। इसमें डेल्टा Fc स्टार और डेल्टा Nc स्टार जो है ये इसकी Coulombic और non-Coulombic एक्टिवेशन एनर्जी को ज़ाहिर करते हैं। According to the Coulomb law, force of attraction between the two charges A and B in the vacuum is given by। now Coulomb law के मुताबिक जो एनर्जी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो बराबर होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस की। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हमारे पास थी GA/GB E स्क्वायर over 4 pi epsilon naught r square, where G and B represent the charges on the A and B respectively, r is the distance between the charges, and epsilon naught is the permeability of the free space as the charges are immersed in solvent. Therefore, relative permittivity of medium should also be introduced. Hence, the above equation becomes F is equal to, यानी फोर्स जो है बराबर होगी GA/GB into E square over 4 pi epsilon naught R square into epsilon naught epsilon R। epsilon R जो है that is the dielectric constant of the solvent। Coulombic interaction energy should be obtained by multiplying the force of attraction with the separation। अब इस फोर्स को अगर हम जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस था R उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें Coulombic interaction energy जो है हासिल होगी। दैट इज Coulombic interaction energy is obtained by multiplying the force of attraction with the separation। आप E जो है एनर्जी है वो बराबर हो गया F इंटू आर। F जो है फोर्स है, R जो है उसका डिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा GA/GB इंटू ई स्क्वायर तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई R। R और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन रह जाएगी E इज इक्वल टू F इंटू R दैट इज इक्वल टू GA/GB E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एप्सिलॉन R। इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं विद एवोगाड्रोस नंबर, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जी। फार्मूला आ जाएगी इसका।
अब आप क्वेश्चन को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ कोलम्बिक एक्टिवेशन एनर्जी FC स्टार दैट इज इक्वल टू E इंटू एन ए, दैट इज इक्वल टू GA/GB E स्क्वायर इंटू NA over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एप्सिलॉन R। यहाँ पे NA जो है दैट इज दी एवोगैड्रोस नंबर। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डेल्टा FC स्टार इन इक्वेशन 1, ये FC स्टार की वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। log K2 दैट इज इक्वल टू log KB इंटू T ओवर H माइनस 1 ओवर RT GA/GB E स्क्वायर NA ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन R माइनस डेल्टा FC इंटू NC स्टार। FC स्टार की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है ऊपर वाली इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास इक्वेशन आ गया log K2 दैट इज इक्वल टू log KB इंटू T ओवर H माइनस 1 ओवर RT GA/GB E स्क्वायर NA ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एप्सिलॉन R माइनस डेल्टा FC NC स्टार। इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस GA/GB E स्क्वायर NA ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ओवर RT इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन R प्लस log ऑफ KB इंटू T ओवर H माइनस डेल्टा FC NC स्टार ओवर RT। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 वेयर एप्सिलॉन R जो है, जब एप्सिलॉन R जो है वो एफिनिटी के बराबर हो जाएगा तो K2 जो है इज इक्वल टू log ऑफ KBT ओवर H माइनस डेल्टा FNC स्टार ओवर RT and it is called the rate constant for infinite dielectric constant and is denoted by K2 naught। log K2 बराबर होगा K2 naught that is equal to minus GA/GB E square NA over 4 pi epsilon naught R into RT into 1 over epsilon R। now हमारे पास इंडक्शन एनर्जी जो है वो बराबर है FR इंटू R, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है ऊपर वाली इक्वेशन को GA/GB E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R को हमने R से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास क्वेश्चन रह गई है R एक R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी नीचे एक R रह जाएगा। E इज इक्वल टू FR दैट इज इक्वल टू GA/GB E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एप्सिलॉन R। इस क्वेश्चन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ, दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ कोलम्बिक एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम इस क्वेश्चन को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसकी आ जाएगी कोलम्बिक एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दैट है डेल्टा FC स्टार इट इज इक्वल टू E इंटू NA, इसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है इंडक्शन एनर्जी को, तो ये आपका पास आ जाएगा डेल्टा FC स्टार दैट इज इक्वल टू E इंटू NA दैट इज इक्वल टू GA/GB E स्क्वायर NA ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन R। Now putting the value of delta FC star in equation 1, ये delta FC star की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो आपके पास आ जाएगी log K2 that is equal to
log of kb into t over h minus 1 over rt za zb e square na over 4 pi epsilon naught r into epsilon r minus delta f n c star। और इस क्वेश्चन को हम इस तरह रीअरेंज कर दें। log k2 इज इक्वल टू माइनस जी ए जी बी ई स्क्वायर एन ए ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर टी इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन आर प्लस log ऑफ के बी इंटू टी ओवर एच माइनस डेल्टा एफ स्टार एन सी ओवर आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। when r epsilon r जो है that is डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियट कहते हैं, अप्रोचेज इन्फिनिटी। अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाए तो log k2 जो है वो बराबर रह जाएगा log k b इंटू टी ओवर एच माइनस डेल्टा एफ एन सी स्टार, क्योंकि यहाँ पे जब आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे जो सारी क्वांटिटी है जी ए जी बी ई स्क्वायर एन ए ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर ओवर आर टी इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन आर, ये सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी और आपके पास क्वेश्चन रह जाएगी k2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू log के बी इंटू टी ओवर एच माइनस डेल्टा एफ एन सी स्टार ओवर आर टी एंड इट इज़ कॉल्ड, उसका रेट कांस्टेंट k2 जो है वो दैट इज़ कॉल्ड द रेट कांस्टेंट फॉर infinite dielectric constant and is denoted by k2 naught. So one question becomes log k2 is equal to k2 naught, that is equal to minus z a z b epsilon naught square n a over 4 pi epsilon naught r over r t into 1 over epsilon r. Again इंडक्शन एनर्जी जो है हम हासिल कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग द फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो E बराबर हो जाएगी E इंटू टी, दैट इज इक्वल टू जी ए जी बी एप्सिलॉन ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन आर। इस क्वेश्चन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर के साथ, हमें ये कूलम्बिक एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू देता है। इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन कूलम्बिक एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज डेल्टा एफ सी स्टार, दैट इज कूलम्बिक एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू ई इंटू एन। ऊपर वाली को ई को हमने मल्टीप्लाई किया कैसे, एवोगाड्रो नंबर से, ई इंटू एन ले, दैट इज इक्वल टू जी ए जी बी ई स्क्वायर एन ए हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन आर। अब ये वैल्यू जो डेल्टा एफ सी स्टार की, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। आपका इक्वेशन थी log के बी टी ओवर एच माइनस 1 ओवर आर टी जी ए जी बी ई स्क्वायर एन ए ई स्क्वायर एन ए ओवर ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर टी 1 ओवर आर प्लस इसमें थी डेल्टा एफ सी स्टार माइनस डेल्टा एन सी एफ स्टार। इसकी जगह हमने एफ सी की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज जी ए जी बी ई स्क्वायर एन ए ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर टी इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन आर प्लस log of के बी इंटू टी ओवर एच माइनस डेल्टा एन एफ सी स्टार ओवर आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर एप्सिलॉन आर जो है अप्रोच व्हेन एप्सिलॉन आर जो है अप्रोचेज इन्फिनिटी, जब एप्सिलॉन आर जो है दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो के टू जो है दैट इज इक्वल टू log of के टी ओवर एच माइनस डेल्टा एफ एन सी स्टार ओवर आर टी। तो ये पहली इक्वेशन जो है
जी ए जी बी ई स्क्वायर एन ए वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर टी इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ है, इसको इन्फिनिटी से डिवाइड करें सारी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो सिंपली log k2 आपका रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू log k b t ओवर h माइनस डेल्टा f n c स्टार ओवर r t। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन एप्सिलॉन r जो है यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, k2 जो है आपके पास रह जाएगा k b इंटू टी ओवर h माइनस डेल्टा एन एफ सी स्टार ओवर आर टी। आज पहली क्वांटिटी जो है ये सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी, तो k2 आपको रह जाएगा log ऑफ k b इंटू टी ओवर h माइनस डेल्टा एफ एन सी स्टार over RT, and it is called the rate constant for infinite dielectric constant denoted by K2 naught। तो उस पर log K2 बराबर आ जाएगा K2 स्टार के K2 naught के, that is equal to minus ZA ZB E square NA over 4 pi epsilon naught R into RT into 1 over epsilon R। Now this is the equation of straight line. The intercept form in the this is the equation of straight line in the intercept form that shows the dependence of rate constant K2 on the dielectric constant epsilon r of the solvent. It is clear from the equation that an increase in epsilon r increases the activation, increases the value of K2, which in turn increases the rate constant, rate of reaction. Non-Coulombic activation can be calculated from the intercept. Now intercept इसका बराबर हो जाएगा k log of kb into t over h minus delta f n c star over rt, that is a log of kb t over h minus intercept into rt, that is equal to डेल्टा एफ एन सी स्टार। इट मीन्स कि आपने कोलम्बिक नॉन कोलम्बिक एक्टिवेशन जो है कैलकुलेट कर ली है फ्रॉम द इंटरसेप्ट। अगर आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है तो आप इसको लॉग ऑफ के पी इंटू टी ओवर एच से माइनस कर दें और उसको आर टी से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एफ एन सी स्टार। Now again this is equation of straight line in the intercept form that shows the dependence of rate constant K2 on the dielectric constant epsilon r of the solvent। इस क्वेश्चन जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में, और इससे हमें पता चलता है डिपेंडेंस of the rate constant on the dielectric constant of the solvent. It is clear from the equation that increase in epsilon r increases the value of K2। अगर आप dielectric constant की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो K2 की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन जब वो भी इंक्रीज होगा, that is increase in the value of K2, increase in epsilon r increases the value of K2, which in turn increases the rate constant, rate of reaction। non-Coulombic interaction एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरसेप्ट। आपके पास इंटरसेप्ट जो है वो है log ऑफ के बी ओवर एच माइनस डेल्टा एफ
स्टार एन सी ओवर आर टी, या इसको हम रीअरेंज करें डेल्टा लॉग के बी टी ओवर एच माइनस इंटरसेप्ट, ये वैल्यू उधर जाकर इंटरसेप्ट इसमें माइनस कर दिया, ये उधर आ जाएगा, तो आर टी इधर आकर मल्टीप्लाई कर देगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लॉग ऑफ के बी इंटू टी ओवर एच माइनस इंटरसेप्ट इंटू आर टी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एफ स्टार एन सी, दैट इज द नॉन कूलम्बिक एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके से आपने नॉन कूलम्बिक एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली है। थैंक यू।